بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نورین ہے اور میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری خوبصورتی دیکھ کر ہی میری سانس مجھے لے گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن 5 بیٹیاں تھیں، جن میں سے صرف 2 ہی بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی۔ میں ایسے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جس میں میری 5 نندیں ہوں، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے بابا نے میرے سسر کے ساتھ مل کر کوئی کام شروع کیا تھا اور ان دونوں کو ہی نقصان ہو گیا تھا۔ اب یا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے رشتہ بنا لیتے، ورنہ بہت بڑی دشمنی بن جاتی اور ہم زیادہ مشکل میں پڑ جاتے۔ میرے بابا نے کہا کہ تم نے میری جان بچانی ہے، تو میری پیاری بیٹی ہے نا، تو ان کے بیٹے سے شادی کر لے۔ رشتہ داری ہو جائے گی تو وہ ہم سے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، ورنہ وہ ہمیں عدالت میں لے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر میں میری کیا عزت ہوگی؟ تو میرے بابا نے کہا، سسرال میں عورت کی ویسے بھی عزت کہاں ہوتی ہے، تو اپنے شوہر کو اپنا بنا کر چلنا، تاکہ وہ تیری ساری باتیں مانے اور پھر الگ ہو جانا۔ جبکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ سارم ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے ماں باپ نے اپنی جان بچانے کے لیے میری قربانی دے دی۔ ہم لوگ تو شہر میں رہتے تھے اور یہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو میری سانس بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو جلد سے جلد میرے پوتے پوتی کی شکل دیکھنی ہے، گھر میں رونق لگی رہے گی تو اچھا رہے گا۔ میری سانس کو بچے پیدا کرنے کا بہت شوق تھا۔ دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ بیٹے کے لیے بیٹیاں پیدا کی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں ان کو بچے بہت زیادہ پسند تھے، اسی لیے انہوں نے اتنے سارے بچے پیدا کیے تھے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا اس گھر میں میرے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا، بس ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا ایک بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے ہی دن سے بچے کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ شادی ہو گئی، جلد سے جلد بچہ چاہیے بس۔ لیکن جب پہلا مہینہ گزر گیا تو میری سانس نے جب ہی سے عجیب سا منہ بنا لیا اور میں حیران رہ گئی۔ رات کے ٹائم بھی وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اس کے پاس اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی ابھی تو صرف شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے، آخر یہ کس قسم کے لوگ تھے کہ مجھے صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے لائے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ کہنے لگے، جو امی کہیں گی وہی ہوگا، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کو 6 سے 7 مہینے گزر گئے تھے۔ میں بہت پریشان رہتی تھی، لیکن میرے یہاں ابھی تک اولاد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ 7 مہینے کو میری ساس نے گناہ بنا دیا۔ جب وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا، ابھی صرف 6-7 مہینے ہوئے ہیں، 1 سال تو کم سے کم انتظار کرو پھر دکھانا۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ کیا یہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں، آپ مجھے پتہ کر کے بتا دیں۔ ڈاکٹر نے مجھے قابل رحم کی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ ہاں بن سکتی ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ جبکہ اس نے میرا چیک اپ نہیں کیا تھا، وہ بس مجھے ایک سائیڈ میں لے گئی تھی اور بولی، تمہاری سانس ایک دم دقیانوسی عورت ہے، ان کو یہی کہہ دیتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ کیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اگر ان کو بتا دیا تو تمہارا تو گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر تو آپ ایک بہت اچھی انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے کیسز دیکھتی رہتی ہوں، اسی لیے مجھے پتا ہے کہ کس وقت کیا ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ جب بھی میرے پاس اولاد کی خوشخبری ہوگی تو میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی اسپتال میں ہوتی ہوں اور 24 گھنٹے موجود ہوتی ہوں، اور اگر کبھی نہیں بھی ہوئی تو تم مجھے فون کر کے بلوا لینا۔ اس ڈاکٹر کا نام فاریہ تھا۔ مجھے تو وہ ڈاکٹر بہت زیادہ اچھی لگی، لیکن ابھی کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح 4-5 مہینے اور گزر گئے اور میری سانس نے سب کو کہنا شروع کر دیا کہ میری بہو تو بانجھ ہے۔ جب محلے سے کوئی عورت آتی تو اس کو بھی یہی کہتی، یا کسی شادی وغیرہ میں جاتی تو وہاں پر بھی یہی کہتی کہ میری بہو تو بچے پیدا ہی نہیں کر سکتی، بانجھ ہے۔
बस ऐसे ही उठा कर ले आए हैं। बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ। सास के सामने कोई बात करूँ तो वो कहती कि कैसे ज़ुबान चला रही है। आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है। जिन बातों का हमें शादी के बाद पता चला, इन सब लड़कियों को तो शादी से पहले ही सब कुछ पता होता है। मेरा कहना ये था कि कुछ मसला नहीं है, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि कुदरती तौर पर ही देर हो रही हो। तो सास कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, शादी के पहले साल में ही औलाद पैदा हो जाती है। जब हमारी शादी की सालगिरह हुई तो हमारा बच्चा 3 महीने का था। साल के अंदर ही बच्चा पैदा कर दिया था। ये तो शुक्र है कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो इस बात पर भी मुझे ताने सुनने को मिलते। मेरे शौहर तो कुछ बोलते ही नहीं थे, बस चुपचाप बैठे रहते। जो माँ कहती बस वही करते। फिर अल्लाह ने करम किया, एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मुझे हकीम के पास ले गए तो हकीम ने कहा कि ये माँ बनने वाली है। तब कहीं जाके सबको सुकून आया। मेरी सास को खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि वो पूरे ख़ानदान में मुझे बांझ मशहूर कर चुकी थी। और अब सारे ख़ानदान वाले कहते कि आप तो कहती थी कि आपकी बहू कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर ये कैसे हो गया। मैं भी चुप हो गई। फिर आखिर मेरी दुआएं सुन ली गई थी। अब मुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए था। मेरे साथ तो इंसाफ हो गया था। मैं माँ बनने वाली थी। जितना मेरी सास को शौक़ था, मुझे लगता था उतना मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं किया गया। मेरे लिए कामों के ढेर रखे होते थे। मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ ना आती। शौहर को कहती तो कहते कि अम्मी से पूछ कर ले आऊँगा। अम्मी से बात करते तो वो कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तो कोई फल फ्रूट नहीं खाए थे, फिर भी इतने सारे बच्चे पैदा किए और सारे के सारे ठीक हैं, कोई मसला नहीं होता, ये सब औरतों के चोचले होते हैं। ऐसे वक्त में शौहर को अपनी उंगली पे लपेटना चाहती हैं, जानबूझ के मासूम बन जाती हैं। कोई तबीयत ख़राब नहीं होती, और औरत का तो जिस्म बना ही बच्चे पैदा करने के लिए होता है, तो फिर ऐसा थोड़ी है कि उस पर कोई अजाब नाजिल हो जाता है। मेरी सास ने मेरे शौहर से कहा कि बस उसकी बातें सुनते जाया करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो, ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो मुझे छोटे छोटे मसले बनते थे। मेरा पहला बच्चा था, वो भी इतने अरसे बाद पैदा हो रहा था, लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो मेरे शौहर कहते कि मेरी माँ के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब एक दिन मेरी बड़ी नंद आई हुई थी तो वो भी माँ बनने वाली थी, तो उसने कहा अम्मी पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मेरी सास ने फ़ौरन कहा कि हाँ हाँ, ऐसे वक्त में दर्द होता ही है, तुम फल फ्रूट खाया करो। मैं उन्हें देखती रह गई। उसकी दफ़ा तो उनको सारी बातें याद थी कि दर्द भी होता है, फल फ्रूट भी खाने होते हैं और दूध भी पीना होता है। जबकि मैं कुछ ऐसी बात करती थी तो कहती थी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो अच्छी भली है, तुम कौन सी बीमार हो, तुम कौन सा दुबली पतली हो, अच्छी भली तो हो, तुम्हारा आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, इतना तो मैंने किसी का भी नहीं देखा था। और कहते हैं कि पहले बच्चे पर तो पेट ज़्यादा नहीं निकलता, क्योंकि इंसान की चमड़ी सख्त होती है, लेकिन जाने मेरे साथ क्या था, मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। इसीलिए मेरी सास कहती थी कि इतना बड़ा पेट है तो बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ। एक दफ़ा अम्मी की कॉल आई तो मैंने उनको बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा तो दर्द नहीं होना चाहिए, जाओ डॉक्टर के पास जाओ। अब उनको कैसे बताती कि ये लोग मुझे डॉक्टर के नहीं लेके जा रहे थे, और मेरे घर वाले भी मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, क्योंकि मेरे घर वाले तो इनके कर्जदार थे, इसीलिए यहाँ पर आते नहीं थे। अगर आते तो ये लोग कोई बात कर लेते, इसीलिए उन्होंने यहाँ आना ही छोड़ दिया था। फ़ोन सिर्फ मुझे करते थे, इन लोगों को कुछ भी नहीं कहते थे कि हमारी बेटी का ख्याल रखना।
मेरी ज़िंदगी तो अज़ाब हो गई थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र थी। मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लेती, पर कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनाए थे, कोई तैयारी नहीं की थी। कहने लगे कि हमने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो वो लोग लेकर आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा कि जब तक वो लोग आएंगे तब तक बच्चे को क्या पहनाएंगे, चादर में लपेटते फिरेंगे। अपने शौहर से कहती तो उनके कान में तो जूं तक ना रेंगती। मुझे एक दफ़ा भी डॉक्टर के नहीं लेके गए थे। कहने लगे जब कोई मसला ही नहीं है तो डॉक्टर के पास जाके क्या करना है। मुझे इतना तो पता था कि एक दो बार तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है, पता तो चले कि अंदर सब कुछ ठीक भी है या नहीं। मैं तो परेशान ही रहती थी, थोड़ा भी दर्द होता तो परेशान हो जाती कि पता नहीं कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई मसला तो नहीं है। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। जब 9वां महीना शुरू हुआ तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब तो बस थोड़े ही दिन रह गए हैं, अब तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे ही और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहे थे। लगता था मुझे जब ही लेकर जाते जब मेरा दर्द शुरू हो जाता, और मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो कहती मैं तो अपनी बहू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तब मेरी सास भी कहती कि मैं भी अपनी बहू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, मैंने तो इसके लिए पंजीरी बनाई है। फल फ्रूट तो घर में ख़त्म ही नहीं होते। फल फ्रूट घर में वाकई ख़त्म नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ अपनी बेटियों के लिए होते थे। मुझे तो एक भी चीज़ खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन गलती से सेब खा लिया तो मेरी छोटी नंद ने शोर मचा दिया कि मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खाया। एक सेब के पीछे ही उसने मुझे इस कदर जलील कर डाला था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने क्यों खाया, पर अब मुझे लग रहा था कि मेरे दिन ऊपर हो गए थे। मैंने अपनी सास को कहा कि मेरे दिन ऊपर हो गए हैं, मुझे अब डॉक्टर के पास ले जाएं। मेरी सास ने कहा तुम आजकल की लड़की हो, अपने दिन भी याद नहीं रहते। कोई दिन ऊपर नहीं हुए, दिन ऊपर हुए होते तो अभी तक दर्द शुरू हो जाता। दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब अभी दिन पूरे नहीं हुए। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी इधर कभी उधर। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन ऊपर से ऊपर होते जा रहे थे। जब मैंने ज़्यादा शोर किया कि मुझे लेकर जाया जाए तो मेरे शौहर ने मुझे हकीम के पास लेकर चले गए। हकीम ने कहा कि अभी वक्त है। ये हकीम उनका ख़ानदानी हकीम था और उनका बहुत पुराना जानने वाला भी। जब हकीम ने कहा कि वक्त है तो ये सब भी मुझे कहने लगे कि देखो अभी वक्त है, ना जाने तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। पहली माँ देखी है हमने जो चाहती है कि जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करके बस जान छुड़ा लें। आखिर ये किस किस्म की बात थी कि बच्चा पैदा करने से मैं अपनी जान छुड़ा लेती। जाहिर है उस बच्चे को संभालना भी तो मैंने ही था, इन लोगों ने तो कुछ नहीं करना था। ये लोग तो मुझे हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे, समझ से बाहर था कि क्या करूं। मेरा पेट मज़ीद बढ़ता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। एक दफ़ा मैं छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली औरत ने मुझे देख लिया। यूं तो वो मेरी सास की जानने वाली थी, लेकिन मुझे हमेशा ही काबिल रहम नज़रों से देखा करती थी। उसने मुझे दूर से इशारा किया। जब मैं थोड़ा करीब गई तो उसने कहा कि ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मैंने कहा कि मेरे हमल को 13वां महीना शुरू हो गया है। तो उसने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी तक ठीक हो। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ, इतनी देर करना मुनासिब नहीं होता, ये गलत बात है। तुम्हारे घर वालों को कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा कि तुम तो जानती हो उनको। उसने कहा कि हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें खुद ही अपनी औलाद के लिए लड़ना है और तुम्हें अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना है। तुम क्या कर रही हो, किसी भी तरह से डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हें अगर दर्द नहीं हो रहा तो वो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे, ये ना हो कि वक्त गुजर जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और एक पल भी मैं बैठ नहीं सकती थी। शौहर से बात की तो उन्होंने कहा कि हकीम के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा कि बात हकीम के पास जाने की नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है।
मुझे कुदरती दर्द शुरू नहीं हो रहा, शायद मेरा ऑपरेशन करना पड़े। उन्होंने कहा, पागल तो नहीं हो गई हो? पता है ना ऑपरेशन में कितने पैसे लगते हैं? मैंने कहा, आपको पैसों की पड़ी है? आखिर ये आपका भी तो बच्चा है, आपको इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे समझ आ गया था कि उन लोगों को कोई परवाह नहीं है। शायद वो मुझे जानबूझकर नहीं लेके जाना चाहते थे कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। औलाद आएगी तो खर्चे होंगे, और ये लोग हद से ज़्यादा कंजूस थे। पड़ोसन ने सही कहा था, अब मैं माँ बन गई थी, मुझे अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चे के कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि ना तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे और ना बाज़ार जाने दिया। मैंने खुद ही अपने कपड़ों में से कुछ कपड़े बनाए थे, वो मैंने एक बैग में डाले, और जो कुछ भी मैं अपने साथ ले सकती थी उस हवाले से मैंने सब बैग में रखा और चोरी चोरी अस्पताल निकल गई। मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद इनको पता चल जाएगा कि मैं घर में नहीं हूँ, तो ये शोर करेंगे कि मैं कहाँ हूँ। और जब इनको पता चलेगा कि मैं बिना बताए चली गई हूँ, फ़ोन भी बंद है, तो यही कहेंगे कि घर से भाग गई है, उल्टी सीधी बातें करेंगे। और अगर ये पता भी चल गया कि अस्पताल गई हूँ, तब भी मुझे डांट तो पड़ेगी ही। मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा होगा, लेकिन अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी, सिवाय अपने बच्चे के। मैं अस्पताल चली गई और वो डॉक्टर भी मुझे जल्दी ही मिल गई। मैंने उनको बताया कि ये मामला है। उन्होंने अपने आले से मुझे चेक किया, और जब उन्होंने वो मेरे पेट पर लगा के सुना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने मुझे ऐसी निगाह से देखा जैसे कोई अजीब बात है जिसके बारे में उन्होंने आज तक ना सुना है और ना देखा है। उन्होंने चीख चीख कर सबको बुलाना शुरू कर दिया, बाकी डॉक्टर्स और नर्सेस को भी बुला लिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि डॉक्टर, क्या हुआ है? हुआ क्या है, बताएं तो सही। डॉक्टर ने कहा कि अभी बताते हैं। उन्होंने दूसरी डॉक्टर के कान में कुछ बात कही तो वो भी हैरान रह गईं। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ। और मैंने कहा कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? बताएं तो सही। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम घबराना नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने बोला कि वो नहीं आएंगे, मैं उनसे छुप कर आई हूँ। उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप को बुला लो। मैंने अपनी अम्मी अब्बू को फ़ोन किया और कहा कि बिना किसी को बताए ही आप फ़ौरन अस्पताल आ जाएं। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पता ही था, क्योंकि वक्त गुजर चुका था। मैं बार बार पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है ना, तो वो बता नहीं रही थी। उन्होंने कहा बस ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। मेरे कज़न का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने मुझे बताया था कि आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन मेरे ऑपरेशन में 2 से 3 घंटे लग चुके थे। सारे डॉक्टर अजीब सी हालत में थे। वैसे तो ऑपरेशन 2 डॉक्टर करते थे, लेकिन यहाँ पर 4-5 डॉक्टर खड़े थे, एक दूसरे से आहिस्ता आवाज़ में ना जाने क्या बात कर रहे थे। मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल कर रहे थे शायद। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे ऑपरेशन रूम से बाहर लेके जा रहे थे तो मैं बेहोश हो गई। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाई दे दी थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरे बाबा सर पकड़ के बैठे थे। ना मेरा शौहर वहाँ मौजूद था और ना मेरी सास। मैंने कहा कि क्या हुआ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? मैं बुरी तरह से घबरा गई, उठकर बैठ गई। लोगों ने मुझे कहा कि परेशान नहीं हो, सब ठीक है। मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को तो कमरे में होना चाहिए था, झूला भी खाली पड़ा था। कहाँ था मेरा बच्चा? एक बार तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से बहुत दूर चला गया है, क्योंकि मैंने आने में बहुत देर कर दी। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे, लेकिन असल में बात ये नहीं थी। डॉक्टर वहाँ पर आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। और उसके बाद जो उसने मुझे बात बताई, वो मेरे लिए किसी खुशखबरी से ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि जिन हालातों में मैं पड़ने वाली थी उसके लिए मैं तैयार नहीं थी, और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। लेकिन जब डॉक्टर अंदर आई तो वो अकेली नहीं आई थी, उनके साथ हॉस्पिटल का मालिक भी आया था,
जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शरीफ और नेक इंसान लगता था। मेरे बाबा की उम्र का था। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी। हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी। बड़ा ही नेक आदमी लगता था। डॉक्टर फारिया ने मेरा चेकअप किया और पूछने लगी कि ठीक हो गई हो, दर्द तो नहीं हो रहा। मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा है कहाँ। मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे रहा था। उन्होंने मेरा तारुफ करवाया। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल के मालिक हैं और इन्हीं की वजह से ये अस्पताल चलता है। अस्पताल में कुछ चीज़ें बहुत महंगी होती है, लेकिन गरीबों के लिए ये मुफ्त में देते हैं, क्योंकि इनको सदका खैरात करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक मौजज़ा हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मीडिया वाले भी आ जाएंगे, शायद आपका इंटरव्यू भी लें, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो। मेरे शौहर और मेरी सास भी वहाँ पर आ गईं और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम यहाँ पर बैठी हो, हम कब से तुम्हें तलाश कर रहे हैं। मेरे माँ बाप को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी को हम फारिग करा देंगे। जो औरत घर से भाग जाए हम उसे वापस नहीं रखते। पूरी रात गुजर चुकी है, पता नहीं ये रात इसने कहाँ गुजारी। मेरे शौहर के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था। मेरे बाबा ने बोला, देख नहीं रहे कि वो रात से हॉस्पिटल में है, किस किस्म के आदमी हो तुम। मेरे शौहर ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, मैं इसको फारिग कर दूंगा। मैं हैरान रह गई, मैं परेशान थी। तब डॉक्टर ने कहा कि आपने जो इस लड़की के साथ किया है ना, आपको इसको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं हैं, क्योंकि आपने एक साथ 13 जानों को ख़तरे में डाला। ये बात डॉक्टर के मुंह से निकली। मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे पास एक साथ 12 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें से 6 बेटे हैं और 6 बेटियाँ। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सच हो सकता है या नहीं। मेरे शौहर की भी अजीब सी शक्ल निकल आई और मेरी सास की भी। उन्होंने 2 मिनट एक दूसरे को देखा और कहा, इस औरत ने एक साथ 12 बच्चे पैदा कर दिए। अरे भाई, ये औरत है या भूत है? कैसे इन बच्चों की परवरिश करेंगे? हम कहाँ से इतना कुछ लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारा पहले ही हाल देखा है बेटी। तुमने जिस तरह दुपट्टे काट काट कर कपड़े बनाए हैं, मैं समझ गया था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता है कि 12 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। जब ये बच्चे बड़े होकर खुद अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल नहीं हो जाते, इनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, दूध वगैरह सब खर्चा मेरे ज़िम्मे होगा। जब उस शख्स ने ये बात कही तो मेरे शौहर और मेरी सास फिर से ही आंखों में बातें करने लगे और मेरे शौहर ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो, बात भी तो ऐसी ही है ना। चलो घर चलते हैं, अल्लाह ने हमें कितने सारे बच्चे दे दिए हैं। मेरे शौहर ने ये बात की तो मैंने उनका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की। अभी तो तुम मुझे तलाक देने के लिए बैठे थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि इस हालत में मैंने ये रात कहीं और गुजारी है और इन बच्चों का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि खर्चा कोई और उठाने वाला है, तो तुम्हें कोई मसला नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को कहा कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं जाना। मैं वहाँ से अपने घर चली गई। मेरे शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बार बार मेरे घर आता था। मेरे माँ बाप ने एक ही शर्त रखी कि अगर अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे शौहर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरे माँ बाप ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए तो आसानी ही पैदा कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ ही रहो जिसने तुम्हारी बीवी और बच्चों की जान खतरे में डाली, तुम्हारे कान भरे। और वक्त पर अगर हमारी बेटी डॉक्टर के नहीं पहुँचती तो ये सारे बच्चे भी मर जाते और हमारी बेटी भी मर जाती।
میرے شوہر کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کی فیملی میں اور یہ بچے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ہمارے بچوں کا خرچہ وہ شخص ہی اٹھا رہا تھا کیونکہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے میرے شوہر کو اچھی جاب بھی لگوا دی تھی جس سے باقی کے خرچے بھی بہت اچھی طریقے سے چلتے تھے۔ میرے شوہر کا جو فرض تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی ماں کے لیے، لیکن وہ رہتے میرے ساتھ ہی تھے۔ وہ واقعی میں ایک اچھا شوہر بن کے میرے ساتھ بچوں کو پالنے میں مصروف تھے۔ یہ بات مشہور ہو گئی، میڈیا میں بھی یہ خبر چلی کہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت نے 12 بچوں کو جنم دیا۔ اس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی قابلیت پر بھی غور کیا جا رہا تھا جنہوں نے اتنا مشکل کیس ہینڈل کیا اور ماں سمیت سارے بچوں کی جان بچا لی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بچوں کی خوراک اور پرورش کا وعدہ کیا۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر دنیا میں کسی کو بھیجتا ہے تو اس کے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ہر سانس میں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔